Bismillah Rahman Rahim. Dear students, this is the 16th lecture of course title Introduction to Special Theory of Relativity with the course code PHYS 4135. I am your course instructor Dr. Muhammad Azam. In this lecture, we discuss the applications of energy momentum relation, and this is a continuation of the last lecture. Here we have another problem, that is a particle of rest mass m lambda decays into a proton of rest mass mp and a negatively charged pi meson of rest mass m pi. इसको हमने शो इस तरीके से किया है। एक पार्टिकल है लैम्डा नॉट जो कि डिसइंटीग्रेट होता है या डिके होता है इनटू टू पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड पाई मेजॉन, और चूंकि इसको हमने क्या नेगेटिवली चार्ज, तो इसके ऊपर हमने नेगेटिव का ये बार लगा दिया। Here we assume that the particle lambda is at rest at the time of decay. So this is an important information जो यहाँ पे given है, that it is has rest mass when at the time of decay. We need to calculate the total energy of proton and pion. Remember last lecture में हमने kinetic energy निकाली थी, लेकिन इस केस में हम इसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे। सो हमें वो रिलेशन यूज नहीं करना जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, दैट इज E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। यहाँ पे सिंपल हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू ही इसको प्रूव कर देंगे। दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ लैम्डा पार्टिकल इज इक्वल टू energy of proton and negatively charged pi meson. Here we have p lambda, pp and p pi. Capital P represents the momentum where small p subscript is used for the proton. Be the momenta of the particles lambda, p and pi respectively. We know the law of conservation of momenta, that is total momentum will be equal to the particles in which the particle decays, that is p lambda is equal to pp plus p pi। और चूंकि हम ये कह चुके हैं कि at the time of decay this lambda particle is at rest, therefore its momentum will be zero because momentum is defined in terms of mv, और velocity चूंकि zero होगी, therefore p lambda will be zero, so we have pp is equal to minus p pi। so अगर हम इसका स्क्वायर लें, it can be written as pp square is equal to p pi square। it seems the momentum of proton and pi meson is same or equal, therefore we say these are equal to another, we say that is equal to p। so चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, so हमने इसको एक अनदर पैरामीटर p के इक्वल रख दिया, which represents the momentum of both proton and negatively charged pi meson। and we know the well-known results of energy momentum relation, that is E square is equal to c square p square plus m naught square c4। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम यूज करना चाह रहे हैं फॉर प्रोटॉन, वी रिप्लेस इट बाय p। EP is the total energy of the proton and mp is the rest energy of the proton। we call it as equation 1। यहाँ पे भी हम यूज कर सकते थे p पाई, लेकिन चूंकि हमने कहा है कि p पाई इज इक्वल टू p, देयरफॉर हमने
पी पाई की जगह पी ही यहाँ पे यूज किया, दैट इज सी स्क्वेयर पी पी स्क्वेयर। सिमिलरली फॉर पाई मेजॉन के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी ये इक्वेशन प्रोटॉन की लिखी है, तो हम पाई मेजॉन के लिए भी इक्वेशन इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। सो वी कॉल इट एज इक्वेशन 2। एंड फॉर लैम्डा पार्टिकल यही इक्वेशन अगर हम देखें तो इस केस में चूंकि हमने ये कहा हुआ है कि इसका ये रेस्ट पे है, so e pi square e lambda square is equal to m lambda square c4, because momentum of the lambda particle is zero due to rest. Therefore we have equation 3 can be obtained by subtracting equation 2 and 3. अगेन यहाँ पे चूंकि हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, सो देयरफॉर हमें E निकालना होगा। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में E को कैलकुलेट किया था, दो रिलेशंस हमने बनाए थे और फिर दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। सो यहाँ पे भी वही प्रोसेस हम कर रहे हैं। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव ई पी स्क्वेयर माइनस ई पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम पी स्क्वेयर माइनस एम पाई स्क्वेयर C4. And if we use the law of conservation of energy, then we have equation 4, that is E lambda is equal to EP plus E pi, and E lambda is equal to m lambda c square. This is the rest energy of particle E lambda, and its rest mass को हमने लेबल किया था m lambda के साथ। therefore EP plus E pi is equal to m lambda c4. we call it as equation 4. so similarly हम यहाँ पे equation 3 पे यूज कर सकते हैं फॉर्मूला a plus b into e minus b. so therefore equation 3 can be written as EP plus E pi into EP minus E pi is equal to m p square minus m pi square C4. और अगर हम इक्वेशन 4 को यूज़ करें यहाँ पे जो हमने लास्ट अभी रिलेशन डेवलप किया था फॉर टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू, तो यूजिंग 4 मीन वी नीड टू डिवाइड इक्वेशन 4 टू दिस इक्वेशन। ये वाला रिलेशन था जो अभी हमने इक्वेशन 4 में बनाया था, इसको हम डिवाइड करते हैं जो अभी हमने इक्वेशन निकाली है। so EP plus E pi will be cancelled out, so we have EP minus E pi is equal to MP square minus M pi square C4 over M lambda. We call it as equation 5. now we have two equations, equation 4 and equation 5. अगर आप गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक तरह से दो वेरिएबल्स हैं विच इज आर इन टर्म्स ऑफ EP एंड E lambda, और सिमिलरली यहाँ पे भी EP और E पाई है। तो हम वेल नो रिजल्ट है, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हों और दो इक्वेशन हो तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होता है, तो हम यहाँ से EP और E पाई की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। सो अब अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, EP is equal to m lambda square plus m pi square minus m pi square c square over 2m lambda। और सिमिलरली दोनों इक्वेशन को अगर आप यूज करेंगे तो वी गेट E pi। सो these are the desired results which we want to find, that is the total energy of the particles proton and pion. so these are the total energy of the particles. जस्ट डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि यहाँ पे एम पी स्क्वेयर माइनस एम पाई स्क्वेयर और यहाँ पे एम पाई स्क्वेयर माइनस एम पी स्क्वेयर। सो नेक्स्ट वी हैव अनदर प्रॉब्लम। Here we have an excited nucleus at rest of rest mass m naught, which emits a photon during the process of transition
to the ground state, and during this transition it loses an energy delta E, and we need to show here that the frequency nu of the photon during the transition of the nucleus, it emits a photon. It has a frequency of nu is equal to delta E over h into 1 minus delta E over 2 m naught c square. गिवन कंडीशंस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है, whose rest mass is m naught है, and during the transition to the ground states it loses energy, and during this process it emits a photon, and we say this photon has a frequency nu. We call m prime and nu be the mass and velocity of the recoiling nucleus. Now, what is a recoil? A recoil is a movement backwards, usually from some force or input. The recoil of gun is a backward movement caused by momentum. So हम ये कह सकते हैं कि जब आप गन से फायर करते हैं तो जो उसका रिएक्शन आता है बैकवर्ड का, दैट इज कॉल्ड ए रिकॉइल. और इन दिस केस हम जो ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है वो ट्रांजिशन के दौरान जब अपनी एनर्जी लूज करता है तो इट एमिट्स अ फोटोन. तो एक जो मोमेंटम उसको मिलेगा बाय लूजिंग एनर्जी बैकवर्ड, दैट इज अ रिकॉइलिंग. सो यहाँ पे हम एम प्राइम एंड न्यू ये वो मैस है जब एम प्राइम एंड वी वेलोसिटी, ये वो मैस और वेलोसिटी है जब न्यूक्लियस जो है वो फोटोन को एमिट करेगा, और एमिट करते वक्त जो उसका मैस होगा दैट इज एम प्राइम एंड न्यू. एंड एम नॉट प्राइम क्या होगा, बी द रेस्ट मैस ऑफ द न्यूक्लियस आफ्टर द एमिशन ऑफ फोटोन. एम प्राइम वो मैस था ड्यूरिंग जब उसने एमिट किया फोटोन को, और एम नॉट प्राइम वो रेस्ट मैस होगा आफ्टर एमिशन ऑफ द फोटोन. सो अगेन हम यहाँ पे वही रिजल्ट यूज करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हम प्रीवियसली भी यूज कर रहे थे. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वहाँ पे हमने ई लैम्डा इज इक्वल टू ई पाई प्लस ई म्यू लिया था. तो यहाँ पे हम उस न्यूक्लियस की जो टोटल आपके पास एनर्जी होगी वो हम उसको लिख सकते हैं, बिकॉज रेस्ट एनर्जी विल बी इक्वल टू ये वो एनर्जी है ड्यूरिंग जब उसने लूज किया, और प्लस ये फोटोन जो उसने एमिट किया था. तो इन दोनों की एनर्जी मिल के उसके रेस्ट एनर्जी के इक्वल होगी. दिस इज बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो दिस इज अ रिजल्ट फॉर न्यूक्लियस आफ्टर जब जो रेस्ट पे आ जाएगा ये उसकी रेस्ट मैस एनर्जी होगी, और एम प्राइम जैसे अभी हमने कहा एम प्राइस वो मास है जो रिकॉइलिंग न्यूक्लियस का है, और एच न्यू वो जब वो उसको एमिट करेगा. सो यहाँ पे हमने एम प्राइम सी स्क्वेयर को ई प्राइम के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, बिकॉज वी नो ई इज इक्वल एम सी स्क्वेयर. सो फॉर सिंप्लीफिकेशन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इसको ई प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया. वी कॉल इट एज इक्वेशन 1. अगेन अगर हम अनदर लॉ यूज करें दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो चूंकि न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे है जिसकी वजह से उसका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होगा, और मोमेंटम ऑफ रिकॉइलिंग न्यूक्लियस जो होगा वो P इज इक्वल एम वी, उसी डेफिनेशन से हम लेंगे, और वो आपके पास होगा एम प्राइम वी स्क्वायर प्लस फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो एच न्यू ओवर सी होगा, और ए हेड जो है ये बेसिकली उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है विच इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एमिशन ऑफ द फोटोन. चूँकि अबव इक्वेशन जो है वो आपकी एब्सोल्यूट इक्वेशंस हैं. एब्सोल्यूट मीन
वेक्टर्स फॉर्म में नहीं है और हम चाहेंगे कि इस इक्वेशन को भी हम वेक्टर फॉर्म से इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकें। सो हम नेक्स्ट इसकी मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेंगे तो m प्राइम स्क्वेयर v न्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू h स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर, और a चूंकि यूनिट वेक्टर था उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। वी कॉल इट एज p प्राइम स्क्वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिकॉइलिंग न्यूक्लियस। ये वो वेल नोन रिजल्ट है जो हम पीछे भी यूज़ करते आए हैं। वहाँ पे हमने यहाँ पे m नॉट स्क्वेयर c4 लिखा था, यहाँ पे हम e नॉट स्क्वेयर यूज़ कर रहे हैं। सो रीअरेंज करें तो अब इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। नो कंसिडरिंग द रिकॉइलिंग न्यूक्लियस, रिकॉइलिंग न्यूक्लियस के लिए हम प्रीवियस इक्वेशन में रिजल्ट्स यूज़ करें, बिकॉज यहाँ पे हमने रेस्ट ई नॉट को हमने रेस्ट एनर्जी के तौर पे लिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू m नॉट प्राइम c स्क्वेयर, c स्क्वेयर इज इक्वल टू e प्राइम स्क्वेयर माइनस p प्राइम स्क्वेयर c स्क्वेयर। प्राइम मीन रिकॉइलिंग न्यूक्लियस है, जो हमने शुरू में प्राइम से जब उसको रिप्रेजेंट किया तो इट मीन्स दिस इज फॉर रिकॉइलिंग न्यूक्लियस। सो यहाँ पे भी हम इसकी जगह मोमेंटम है तो न्यूक्लियस चूँकि ये फोटोन में था तो हमने इसको इन टर्म्स ऑफ h स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है यूजिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली फॉर्म थी m नॉट c स्क्वेयर इज इक्वल टू e प्राइम प्लस h न्यू। इसकी वैल्यू हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी m नॉट c स्क्वेयर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वेयर c4 माइनस 2m नॉट c स्क्वेयर h न्यू। और ये चेंज इन एनर्जी है बिकॉज दिस इज डेल्टा E इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वेयर माइनस m नॉट प्राइम c स्क्वेयर। चेंज इन एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज ये ट्रांजिशन जब हो रही थी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट, तो इसकी जो एनर्जी, इसकी जो मैस में चेंज आया है उसको हम एज ए, बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी m नॉट स्क्वेयर c स्क्वेयर m नॉट प्राइम c स्क्वेयर, तो इसको हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं कि दैट्स बिकॉज हमें इसकी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर प्रीवियस इक्वेशन से हम यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो m नॉट यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। सो हम बेसिकली इक्वेशन 3 को यूज़ करना चाहते हैं, देयरफॉर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये स्क्वायर है, देयरफॉर हमने इक्वेशन इसका हमने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे इनफैक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इस इक्वेशन का स्क्वायर ये बन जाएगा राइट हैंड साइड, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड भी m नॉट प्राइम c स्क्वायर होल स्क्वायर है और इक्वेशन 4 का भी है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, और चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है सो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर सम स्टेप्स जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डिज़ायर रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन व्हिच इज़ गिवन बाय इन दिस रिलेशन। सो इस तरह से ये आज हमने 2 प्रॉब्लम की हैं और इसके साथ ये आर्टिकल कंप्लीट होता है एनर्जी मोमेंटम रिलेशंस और 4 वेक्टर फॉर्मलिज्म से जो हमने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे चार्ज को इन टर्म्स ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस टू स्टडी द फिनोमेना ऑफ दोज पार्टिकल विच हैव चार्ज, क्योंकि अभी तक हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के बारे में सारी डिस्कशन कर रहे थे। सो देयर इज अ फिनोमेना इन विच चार्ज पार्टिकल आल्सो इन्वॉल्व्स। सो उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर।